السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ رمضان کا یہ پیارا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں دعائیں بہت زیادہ انسان کی قبول ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنی دعاؤں کو بھی اس مہینے کے لیے خاص طور پہ سنبھال کے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم اس وقت دعائیں مانگیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اگر ہم اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور اس کی ثنا سے کریں۔ تو یعنی آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ نے دعا شروع کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوب خوب حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آج میں آپ کو وہ ذکر بھی بتاؤں گی جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کے اندر اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو میں نے آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بتایا تھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے اذکار وہ ہیں جن کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے۔ اور خیر سبحان اللہ والحمد للہ یہ والا تو جو تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بہت محبوب ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے نا تو آپ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، آپ اس کی محبت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی مدح اور تعریف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک بندہ اس کی حمد بیان کرے، اور اس سے زیادہ اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے، جو یا تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ اور اب باقی جو لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے بڑے اچھے جملے، بڑے خوبصورت جملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو خود بتا دیے ان سے زیادہ آگے نہیں ہو سکتے، ان سے بہتر کوئی اور الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ہماری زبان بھی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص، ہم جو اپنی زبان سے کتنے بھی اچھی طرح سے بولنا چاہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیں تو ہم سے اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان فرما دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ یا اس کے نبی نے جو الفاظ بیان کر دیے ان کے ساتھ اس کی تعریف ہم بیان کریں تو وہ بیسٹ ہے۔ جیسے اب میں آپ کو بتاؤں سورۃ الحدید ہے، اس کی شروع کی جو آیات ہیں 6 آیات، آپ وہ ان کے اندر دیکھیں گے ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ آیت الکرسی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس طرح سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کی تعریف ہے، اسی طرح یہ جو تسبیحات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری تعریف ہے۔ تو ان کو پہلے بیان کریں، جلدی نہ کریں دعا کرنے میں، پہلے آپ ٹیک یور ٹائم، پہلے آپ خوب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ دعا کریں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس درود شریف شروع میں پڑھ لیا، اینڈ میں پڑھ لیا، بس کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ نہیں، آپ پہلے حمد بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی دعا کا آغاز کیجیے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی حمد بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اس کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی حمد بیان کرے نا، سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے سب مل کے بھی اس کی حمد بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری دنیا مل کے اللہ تعالیٰ کی، اللہ معاف کرے، تنقیص بیان کرے، نقص بیان کرے، تو بھی سب مل کے یہ سب کر رہے ہوں تو
तब भी उसकी बादशाहत में एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। और फिर हम क्यों उसकी हमद बयान करें, क्यों उसकी मदह करें, उसका क्या फायदा है? तो उसका फायदा इंसान को है, अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं है। इसके जरिए इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, उसके मुकर्रबीन में शामिल हो जाता है। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती? क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है मेरा बंदा मेरे हमद बयान कर रहा है, वो उसको अच्छा लगता है, तो वो बंदा अल्लाह ताला के यहाँ अपने रैंक्स रेज कर देता है। वरना ऐसा नहीं कि उसको कोई फर्क पड़ जाता है। और दूसरी क्या बात है, जब आपके रैंक्स रेज्ड होंगे अल्लाह ताला के पास, तो आपकी दुआ भी ज्यादा कबूलियत के चांस है। तो आपकी दुआ भी कबूल होने का ज्यादा करीब है इस चीज से कि कबूल हो जाए। और वैसे भी जो हमद है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ भी है। जब मैंने आपको बताया था ना अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, अल का क्या मतलब, सारी की सारी तारीफ और शुक्र दोनों इसके अंदर आती हैं। तो शुक्र भी अदा करने से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है इंसान से, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। फरमाया ना, ला इन शकरतुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। तो आपकी दुआएं ज्यादा कबूल होंगी जब आप शुक्र अदा करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेके आप बैठ के अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर किया करें, और शुक्र के जज्बात अपने अंदर लेकर आए। हर वक्त एक गिले शिकवे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं हुआ, मैंने ये दुआ की थी ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा कमी रह गई, इस चीज़ का नुकसान हो गया, नहीं। उन चीज़ों को सोचिए जो मेरे पास हैं, और वो बहुत सारी हैं। हम इस कदर नाशुक्रे हो गए हैं कि हम बहुत सारा कुछ हमें मिल जाए ना, मसलन हम किसी सफर पे जा रहे हैं, वो सफर बड़ा अच्छा गुजरा लेकिन उसके अंदर कोई एक खराबी आ गई, और हम जब वापस आते हैं तो हम वो जो सारे सफर में अच्छाइयाँ हुई वो कोई बयान नहीं करते, बस बार बार उसी की गर्दान लगाए रखते हैं कि जो हमारे साथ वो एक मसला पेश आ गया था, अरे पता है तुम्हें कैसे हुआ, पता है ये हुआ, जिसको लेके बैठे उसको वो ही बताना शुरू कर दिया। तो हमारी ना आदत नाशुक्री की बहुत ज्यादा हो गई। हमें अपने अंदर शुक्र गुजारी पैदा करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पर करीम में फरमाया, व कलीलुम मिन इबादी अश-शुकूर, मेरे बहुत ही कम बंदे शुक्र गुजार हैं। बहुत कम बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं, यानी बंदों में से कम ही हैं जो शुक्र या का भी मतलब इतना एहसास रखते हैं कि हमें शुक्र अदा करना। तो हम थोड़ा सा टाइम लेके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नेमतें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही हैं। एक एक नेमत को पकड़ के सोचें, उन लोगों को सोचें जिनके पास वो नेमत नहीं है, और फिर सोचें अगर मेरे पास भी ना होती तो क्या होता। अब ये वाली चीज मेरे पास है, फलां के पास नहीं है, अगर मैं भी उसकी जगह पे होती और मेरे पास भी ये ना नेमत होती, मिसाल के तौर पे शौहर नहीं है किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास अमनो अमान नहीं है, किसी के पास बीनाई नहीं है, किसी के पास अक्ल और समझ की कुव्वत नहीं है, किसी के पास सेहत नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास चैन और सुकून नहीं है, किसी के पास और माश के वसाइल नहीं है, जॉब नहीं है, किसी के पास काम कारोबार नहीं है, किसी के पास इस्लाम की नेमत नहीं है, किसी के पास कुरान की नेमत नहीं है, किसी के पास हिदायत के रास्ता ही नहीं है, दिखा ही नहीं है उसको वो रास्ता। यानी बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। आप इनके ऊपर गौर कीजिए और इन नेमतों को सोचिए कि मेरा रब कितना करीम है जिसने मुझे ये सारी नेमतें अता की। और फिर हमद के अंदर तारीफ भी है। तारीफ है कि अल्लाह ताला सारी कायनात तेरी मखलूक है, और हर नेमत तूने अता की, तेरी कितनी तारीफ है। तो आप इस तरह से अल्लाह ताला की ज़ुबान से भी हमद बयान करें, और फिर देखें जिस्म से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कैसे उसकी इताअत करके, सिर्फ ज़ुबान से नहीं बयान करना। अगर शुक्र का जज्बा आ जाए ना, जैसे शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह ताला बंदे से इतना राजी हो जाता है और उसको बहुत सारी नेमतें देगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत इजाफा कर दूंगा। वो नेमत भी कायम रहेगी और अल्लाह ताला और ज्यादा भी देगा। बल्कि हदीस में आता है, अल्लाह ताला
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है जो एक घूंट पानी का पिए और उसका शुक्र अदा करे, और एक लुकमा खाने का खाए और उसका शुक्र अदा करे। तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं सहरी इफ्तारी के वक्त? हम्म कि आप एक घूंट भी पीते हैं, ये नहीं कि घटाघट पानी पिया और उसके बाद चलो अगर याद आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दी। अक्सरियत तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही भूल जाते हैं। यानी एक घूंट भी आप पिए ना और उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि उस पे भी राजी हो जाता है। क्या एक दो बोल ही हैं, अल्हम्दु और लिल्लाह, बस। और एक लुकमा खाने का कहता है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ना सिर्फ इस पे राजी हो जाता है, बल्कि जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ शुक्र के कलिमात भी सिखा दिए जो खाने के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ भी हो जाएंगे। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लदी आमनी हाजा, और हाजा ताम भी है, इसमें हाजा भी है। व रज़क़नी ही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ये खाना दिया बगैर, और ये रिस्क मुझे बगैर किसी मेरी मेहनत, बगैर मेरी किसी काबिलियत, बगैर मेरी किसी कुव्वत के मुझे दे दिया ये रिस्क। अल्लाह ताला खुश तो होगा ही और गुनाह भी माफ कर देता है। नमाज में भी आप देखें हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कुरान करीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू होती है, कुरान शुरू होता है। नमाज में सना के बाद, यानी उसमें भी बेसिकली सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका है ना, तो उसमें भी हम्द है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र है। और कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जब अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या आपने जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया और उसकी तारीफ कर दी, तो आपने बेसिकली मान लिया कि वो रब सारे जहानों का, उसका, उसकी तरफ से ही है। जितनी नेमतें मुझे मिली हुई हैं और जितने लोगों को जितनी नेमतें मिली हैं वो सब उसकी तरफ से हैं। और वही है जिसने अता किया और उसके ऊपर उसी की तारीफ है और उसी का शुक्र है। और खुद इंसान झुक झुक जाए इस चीज में। और आप देखें कि नमाज में हम लोग वहां पहुंचे थे ना, सजदे की बात के ऊपर, तो सजदे में भी इंसान अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है। मतलब जब वो खड़े होके उसने शुक्र अदा कर लिया, फिर वो जब रुकू में गया और रुकू से भी खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा था? रब्बना वलकल हम्द, ए अल्लाह, हम्द तेरे लिए है। ए हमारे रब, तेरे लिए है सारी तारीफ, तेरे लिए है सारा शुक्र। तो पहले खड़े होके भी, क़याम में भी उसने शुक्र और हम्द और बयान की, और फिर रुकू से उठ के भी उसने यही बयान किया। और उसके बाद वो सजदे में चला जाता है। आपने कभी सजदे की हालत पे गौर किया है कि सजदे की हालत कितनी ज्यादा आजी की हालत है, कितनी ज्यादा जिल्लत की हालत है? कभी आप वैसे अपना नाक जमीन पे रखेंगे, अपना माथा रखेंगे, और कभी आप वैसे अपने घुटनों के बल पड़े होंगे इस तरह? नहीं। तो इंसान जब ऐसे हालत में होता है तो वो अपने आप को पूरी तरह गिरा देता है किसी अजीम हस्ती के आगे। इसी वजह से हम किसी और के आगे ऐसे सजदा नहीं कर सकते, ना रुकू में जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हम कर सकते हैं। और फिर ये वो वक्त है जिसमें इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। बस जुद वक्त करीब का मतलब यही है कि सजदा कर और करीब हो जा, सजदा कर और करीब हो जाए। यानी कि इंसान आ, 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 उसमें है, सजदे की हालत के अंदर इंसान तजल्लुल के अंदर है, आजी के अंदर है। इंसान अपने आप को खुद दिखा रहा है कि या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेबस हूं, मैं मजबूर हूं, मैं बेकस हूं, और ये है मेरा मकाम, इससे ऊपर मेरा मकाम नहीं। असल मेरी जगह यही है कि मेरा सर तेरे कदमों में पड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना, जब इंसान सजदे में होता है तो असल में उसका सर अल्लाह ताला के कदमों में पड़ा होता है। तो मैं उस अजीम हस्ती के आगे पड़ा हुआ हूँ और उसने मुझे सब कुछ दिया है। असल में ये एक शुक्र गुजारी है। अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया और मैं तो किसी भी काबिल नहीं, मेरी ये जगह है। और अगर इससे नीचे भी कोई जगह होती तो मैं उसमें गिर जाता, लेकिन इससे नीचे कोई जगह है ही नहीं कि मैंने अपनी बड़ा इज्जत का जो मकाम इंसान का चेहरा है
اس کو زمین کے اوپر رکھ دیا، ناک کو بھی زمین پہ رکھ دیا، کبھی نہ انسان ویسے رکھے، ماتھے کو بھی رکھ دیا۔ تو تو میرا مالک ہے، میں نے تیرے آگے اپنا آپ بچھا دیا، اور میں تیرا شکر تو ویسے ادا کر ہی نہیں سکتا جیسے کرنا چاہیے، اور ویسے میں تیری عبادت کر ہی نہیں سکتا جیسے کرنی چاہیے، تو میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ میری بے بسی ہے میرے رب، وہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں، اور ساتھ اپنا تذلل بھی ہے اس کے اندر نا، کہ میں کتنے برا ہوں، اور میں نے ویسا نہیں کیا جیسے مجھے کرنا چاہیے، اب میں نے الٹا تیری نافرمانی کر دی، مجھے تو نافرمانی ایک پل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور مجھے تو ہر وقت تیری شکر گزاری اور تیری اطاعت کرنی چاہیے تھی، تو کیونکہ تو اتنا بڑا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ پہ ظلم بھی کر دیا ہے۔ میں نے اسی لیے میں نے آپ کو وہ تصویر بھی بتائی تھی نا، جس جو سجدے کی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، تو آپ یہ ساری تسبیحات بھی یاد کر کے سب بھی مانگ سکتے ہیں سجدے میں، صرف ایک سبحان ربی العالی صرف نہیں، آپ یہ سب ہی مانگ سکتے۔ تو آپ اور میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق تو کبھی دے ہی نہیں سکتے نا، تو ہم نے اپنے آپ کو گرا بھی دیا اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا کہ وہ سب سے عظیم، اور تو اعلیٰ ہے اللہ، میں کچھ نہیں، میں تو یہ ہوں، اور تو پاک ہے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، اور میں کیا ہوں، میں یہ ہوں۔ تو انسان اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو جھکا کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی سبحان ربی، سبحان میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک قسم کی کمزوری سے پاک کرا دینا، تیرے اندر تو کوئی کمزوری اور عیب نہیں، ہاں میرے اندر ضرور ہے، میں تو اس حالت میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو بچھا رہا ہوں اور تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے سجدے میں انسان دعائیں کرے تو وہ دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے چانس بھی زیادہ ہیں قبولیت کے، لہٰذا انسان اپنے سجدے کی حالت کو اپنی دعاؤں کے لیے رکھے کہ میں اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اور سجدے کی حالت میں چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ نفل نماز ہے، عربی زبان میں کچھ دعائیں جو مسنون ہیں وہ آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ جو مسنون دعائیں نا بہت جامع ہیں، بہت جامع، میں اور آپ اتنی لمبی لمبی باتیں کریں، وہ باتیں سمجھ لیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا ہے مسنون دعاؤں میں، ہم اتنی لمبی بات کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات کے اندر ساری بات کہہ دی جاتی، ساری بات آ جاتی ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے ہیں عافیت کی، تو عافیت میں بھی کیا ہے، عافیت میں بھی آپ نے ساری بھلائی مانگ لی اور ساری طرح کے شر سے بھی پناہ مانگ لی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہترین دعا ہے نا وہ عافیت کی دعا ہے، عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہر ایک برائی سے محفوظ رکھنا، ہر ایک شر، ہر ایک فتنے، اب میں کتنی لمبی باتیں بول رہی ہوں، لیکن جب میں نے کہہ دیا عافیت دے دینا تو ساری بھلائی دے دینا، اور سارے قسم کے شر اور مشکلوں سے اور پریشانیوں سے اور مصائب سے اور بیماریوں سے اور ہر قسم کی غم سے اور دکھ سے اور سب چیزوں سے ان سے بچا کے رکھنا، اور ساری بھلائیاں دے دیں، یہ عافیت ہے۔ اسی لیے مسنون دعائیں کتنی پیاری ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو کا، عفو کیا، معافی، اور عافیت جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، اور کہاں پہ، اب ہمیں تو آئے بھی نہ یہ بات کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا سکھا دیا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں بھی تو ہمیں شر کے سے بچنا ہے، ہر فتنے سے بچنا ہے، ہر برائی سے بچنا ہے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے شر سے بچا لینا، ہر قسم کی برائی سے بچا لینا، اور ہر قسم کی بھلائی دے دینا، دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی معاف کر دینا، آخرت میں بھی جا کے معاف کر دے، چھوٹی سی دعا، اور بات سوچیں کتنی بڑی بیان کر دی گئی کہ سب کچھ ہی مانگ لیا گیا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، آپ کو کوئی بہت لمبی نہیں بھی آتی،
मुख्तसर वाली याद कर लें, और आप देखेंगे मसनून दुआएं छोटी छोटी ही हैं। आप उनको अगर याद कर लेंगे तो आपको कितनी काम आ सकती हैं कि आप अपने सज्दों में उनको शामिल कर लें। तो आपने अपने सजदे में खूब खूब दुआएं मांग ली, खूब खूब दुआएं मांग ली, और ध्यान के साथ मांगा कि मैं किस हस्ती के आगे पड़ी हुई हूं, किस हस्ती के जिसके हाथ में मेरा सारे काम है, सारे काम दुनिया के भी और आखिरत के भी। और वो हस्ती है वो जो कि मेरा पालने वाला है, वो मेरा रब। देखिए आप जब कह रहे हैं सुबहान रब्बी अलाला, मैंने आपको रब के बारे में पहले भी बताया था ना, रब पालने वाला, मालिक भी है तू, मालिक भी तू ही मेरा है ना, खालिक भी तूने ही पैदा किया ना, और पालने वाला भी तू ही है ना। उलमा कहते हैं कि आप ना दुआओं को अगर चाहते हैं ना कि कबूल हो ज्यादा, तो अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत का वास्ता दे कि तू मेरा रब है या अल्लाह, तू मेरा रब है। अब यानी अब आप रब को ही कहेंगे ना, अपने मालिक को ही गुलाम जाके कहेगा ना कि मुझे ये चीज की जरूरत है, और किसके पास जाएगा? तू ही तो है मेरा रब, तो मैंने तो तेरे पास ही आना है, और तू ही मेरा पालने वाला है। अब रब ना इतना प्यारा लफ्ज है ना, इसी वजह से अल्लाह ताला ने देखे कितने नबियों की दुआएं कुरान में रब से स्टार्ट होती हैं, रब के लफ्ज से। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में जितनी दुआएं सिखाई हैं सारी रब से, रब इरहमहुमा, और रब्बना ज़लमना, और फिर रब्बना आतिना, और रब्बना हबलना, मतलब देखिए आप सारी दुआएं रब रब रब। तो रब का लफ्ज, और इसी तरह हम सजदे में भी जाकर रब भी कह रहे हैं। और हमने जब रुकू से भी खड़े हुए तो हमने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम। अब देखिए रब, अब रुकू में भी आपने सुबहान रब्बी अज़ीम, रब और मेरा रब, कितने मान से है इंसान कहता है ना मेरा रब, नहीं ये नहीं कि किसी और का रब, मेरा रब, तू तो मेरा रब है। तो जब इंसान ने कहा कि तू मेरा रब है, तो असल में इंसान अपने आप को ये बता रहा है कि मेरा तो तू ही रब है ना, और तू तो पाक है, और तू वो है जिसने, जो मेरा मालिक भी है, खालिक भी है, तू मेरा पालने वाला है। अब देखें जो पालने का लफ्ज है ना, इससे आपको क्या समझ आती है? दुनिया में कौन पालता है? एक बच्चे को कौन पाल रहा होता है? उसकी माँ। अच्छा, अब जो आप उससे देखें ना ताकि आपको समझ आए, जो पालना होता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इस जॉब के अंदर, ये बताइए। पालने की जॉब में जब एक माँ एक पालने की जॉब कर रही है, उसमें क्या क्या चीज शामिल है? क्या वो उसको फीडर फेंक के चली जाती बस पीता रहे खुद ही, और एक आके उसका डायपर चेंज करती है, बस खत्म हो गया, उसकी जॉब फिनिश हो गई? नहीं। कैसे पालती है वो? पालना जो है, एक तो ये कि वो 24/7 की जॉब है उसकी। सेकेंडली उसकी हर एक जरूरत माँ पूरी कर रही है, चाहे वो पेशाब कर दे, गंदगी कर रहा है, उसके कपड़े गीले हो गए हैं, वो वॉमिट कर देता है, वो ये नहीं कह सकती कि ओ ये वाला तो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पालने का, और पालना मीन्स फीडर दे देना। नहीं, सारे काम, वो भूख में है, प्यास में है, उसको गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लग रही है, उसको किसी चीज से बचाना है जो शरर की है, या वो बीमार हो गया तो उसको देखभाल करना है, या वो किसी किस्म की भी उसकी जरूरत ना, वो सब उस माँ के जिम्मे है। वो कोई पालने वाली वो है, ठीक है। प्लस उसको मोहब्बत देना, शफकत देना, उसकी निगहदाश्त करना, उसकी हर एक तरह से उसको कंफर्ट देना, उसके लिए बेहतरी की चीजें सोचना, ये सारा वो पालने वाली का काम है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना रब पालने वाला है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको उसने रिस्क दे दिया तो खत्म। नहीं, जब मैंने कह दिया ना रब भी मेरा रब, तू ही तो मेरा पालने वाला है, मेरी सारी जरूरियात तुझी ने तो पूरी करनी है, मेरी निगहदाश्त तूने ही तो करनी, मेरी हिफाजत भी तूने ही करनी है। और उस रब के लफ्ज के अंदर ना मोहब्बत है। जो माँ पालती है तो वो मोहब्बत भी दे रही है, तो रब पालता है इसका मतलब सारों को रोजी भी वो दे रहा है, सबकी मुश्किलें भी वो दूर करता है, सबकी हाजतें भी वो पूरी करता है, सबको दस्तगीर भी वो है, सारे जहानों को हर तरह से उनकी हर एक चीज का इंतजाम करना वो उसने अपना जिम्मा लिया हुआ है, हर हर चीज का।
सब कोई वो दे रहा है, एक अनाज का दाना भी किसी और कोई और नहीं दे रहा, सब कुछ वो ही दे रहा है। और फिर शफकत भी वो ही निछावर करता है, फिर रहमत के खजाने भी वो ही खोल देता है। और उसकी रहमत कितनी है बताएं। मैंने आपको बताया था ना, वो रब वो नहीं है कि आप यानी जैसे आप कहें कि आपने अपने मिसाल के तौर पे आपने एक बकरी का बच्चा पाला और उसके बाद एक दिन आपने इसको ज़िबा कर दिया, ये नहीं। वो पालना, माँ की शफकत को सोचें कि वो अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर देती, वो रब अपने बंदे पे सारी मोहब्बत निछावर कर देता। इसीलिए वो रहमान और रहीम है। रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा, कितना बताएं कितना, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, इतनी रहमत है उसके पास। और देख लेना, मैंने आपको बताया था कि उसने एक रहमत का एक 100 में से अपनी रहमत का एक हिस्सा जमीन के ऊपर भेजा हुआ है, जिसका एक जर्रा मुझे और आपको मिला है। और फिर उस एक जर्रे के जरिए हम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों से भी, दोस्त अहबाब से भी, और हम अपनी औलाद से जो मोहब्बत करते हैं वो उस एक जर्रे के जरिए है। हम ये नहीं कह सकते ओ मैं तो अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रही, अब तो खत्म ही हो गई मेरी मोहब्बत, वो तो सारी उधर मैंने दे दी है, अब तो मेरे लिए किसी और के लिए बच ही नहीं गई। नहीं, अब जो आप औलाद से मोहब्बत करते हैं, आप सोचें कि आप अपने आप को हलकान कर देते हैं अपनी औलाद के पीछे, अपनी खुशियां भी कहते हैं कि औलाद को ही दे दें, हत्ता के दुआओं में भी इंसान अपनी दुआएं तो भूल ही जाता है, अपनी औलाद के लिए ही दुआएं करता रहता है। ये उस एक जर्रे की वजह से जो उसकी रहमत के 100 हिस्से में से जर्रा मुझे और आपको मिला है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये एक हिस्सा जो 100th हिस्सा है ना वो भी वापस ले लेगा, उसके पास पूरी 100 रहमतें उसकी हों। फिर वो कितनी रहमत निछावर करेगा कि शैतान को भी उम्मीद हो जाएगी कि शायद आज मेरी भी बख्शिश हो ही जाए। और वो इन रहमतों के साथ मुतवज्जे है। आप सोचिए 99 रहमतें अभी भी उसके पास ही हैं, 100th रहमत का एक हिस्सा सिर्फ उसने जमीन पे उतारा है ना, तो 99 जिसके पास है। आप सोचें कि मैं और आप कितने मेहरबान होते हैं, हम अपने आप को बहुत रहम दिल समझते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसे हलकान होते हैं। तो अभी भी वो 100th हिस्सा पूरा का पूरा मुझे और आपको नहीं मिला हुआ। कैन यू इमेजिन, वो 99 हिस्से जो हैं, जो जो उसके पास हैं। हम कहते हैं, ये कोई हदीस नहीं है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने लगा। 70 का भी वर्ड छोटा है, ये भी नंबर छोटा है। इमेजिन करें जिसके पास 99 रहमतों के हिस्से हैं, उसकी मोहब्बत कैसी होगी। उससे जब आप आगे उसके गिर जाते हैं ना, और उससे गिर के मांगते हैं ना कि मैं सजदे में पड़ा हुआ, मेरा रब तो तू ही है, देना तो तू नहीं है ना, सिर्फ वो तू नहीं है, मुझे पालने वाला तो तू ही है ना। तो खुद सोचें कि उस रब को किसी से पूछना नहीं है देने से पहले, उसको किसी की परमिशन नहीं लेनी, और या फिर ऐसे किसी से उधार लेके नहीं देना कि चलो उसमें ही कोई मुश्किल हो जाती है। इंसान तो कहीं से भाई उसके पास नहीं होता, किसी से मांग मूंग के दे देता है, ठीक है, उसमें वो भी नहीं है, और उसके लिए मुश्किल भी नहीं है कि कोई बड़ा प्रोसेस हो लंबा। कई चीजें होती हैं हमें मिलनी होती है, हम एप्लीकेशन देते हैं, ये करते हैं, फिर उस तक पहुंचती है, फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर अगर आगे से कहीं से अप्रूवल लेते हैं, खुद भी करना हो तो पहले सोचते हैं समझते नहीं। उसकी उसने देना है तो उसको कहीं से ना अप्रूवल लेना है ना उसके पास हमारी एप्लीकेशन पहुंचने में देर लगनी। जो आपने अपना सर सजदे में रख दिया है ना, तो बस आप डायरेक्ट उसके साथ बात हो रही है, वो आपकी तरफ मुतवज्जे है। और वो बखील भी नहीं है। बखील भी चलो एक होता है ना, बंदे के पास बड़ा कुछ होता है, एक आदमी के पास उसे और बड़ा कुछ, बस दिल ही नहीं बड़ा है, बड़ा कुछ लेकिन दिल बड़ा नहीं है। अब दें तो कैसे दें, मर मर के देते हैं, क्या है, पहले भी तो दे दिया था, फिर इतना, फिर दोबारा दे दूं, फिर दे दूं, ये तो बिगड़ जाएंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। कैन यू इमेजिन के जब से कायनात है, जब से उसने अपनी मखलूक को पैदा किया, कौन खिला रहा है सबको।
कौन पिला रहा है सबको? कौन चला रहा है सबको? कौन पाल रहा है सबको? और सिर्फ आप अपनी जमीन को ना ना देखें, सितारों सैयारों पे पल्ला जाने कितनी मखलूक है, उसके कितने लश्कर हैं, हमें क्या पता। उन सबको कौन चला रहा है? उनकी सारी जरूरियात कौन पूरी कर रहा है? उनका रब कौन है? वो अल्लाह ही है ना। लेकिन उसके खजाने आज तक खत्म नहीं हुए। वो देता ही जाता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है, और उसको परवाह नहीं है। इसीलिए हदीस कुदसी है ना, है मेरे बंदो, तुम्हारे अव्वल आखिर जिन इन सब आ जाएं, जितने भी हैं, जो भी मौजूद हैं, सब आ जाएं। यानी अव्वल आखिर से मतलब है जो पिछले पैदा हुए हुए अब मर गए हैं ना, वो भी खड़े हो जाएं। और जो इस वक्त हैं वो भी सारे खड़े हो जाएं। और जो क्यामत तक पैदा होने वाले हैं ना, वो भी आज ही खड़े हो जाएं। और अल्लाह ताला फरमाता है सारे मुझसे मांगे, और इतना मांगे, इतना मांगे, जो इनके दिल में आए मांगे। और इसमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि बारी बारी जी आप देखें, हर एक की अपनी बारी से आए ना, फिर इस तरह सारे एकदम शुरू हो जाएंगे तो फिर तो सही नहीं है। नहीं नहीं, लाइन लगाओ, टिकट लो। आपकी टिकट देख के आपको नहीं, सारे एक साथ ही बोलना शुरू कर दो। कोई बारी के इंतजार की जरूरत नहीं, सब मांगो, एक साथ मांगो। तो अल्लाह ताला सबको फरमाता है मैं सबको देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। और मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। आपने एक सुई ले आप, और समुंदर में डालें और निकालें। आप मुझे बताएं, समुंदर के पानी में कितनी कमी आई? हम्म? कितना कम हुआ समुंदर का पानी, जो सुई के डबोने से कितना कम हुआ, कि जितना सुई पे लग गया हो तो कितनी कमी आ गई? कितना कम हुआ? कुछ भी नहीं कम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है इतनी भी नहीं कमी आनी मेरे खजानों में। फिर उसको क्या परवाह है? सारी दुनिया जो है उसके नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो उसने क्या पूरी दुनिया भी किसी को दे दे तो उसको परवाह नहीं। अब देख लें जन्नत में जो आखिरी जन्नती जाएगा ना, आखिरी लास्ट वन, उसके बाद नहीं किसी ने जाना। पता है उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? इतनी जितनी ये पूरी जमीन है। ठहरे, अभी खत्म नहीं हुआ। ये पूरी जमीन, पूरी जमीन सब किसी को, एक बंदे को मिल जाए, सोचो उसका क्या हाल हो। एक कंट्री मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक शहर ही मिल जाए तो बड़ी बात है। पूरी जमीन मिलना कितनी बड़ी बात है। यही नहीं, 10 जमीनें और एक जैसी। और एक हदीस में तो ये भी आता है, जो जो आखिर में जन्नत में जा दाखिल होगा, यानी अब वो लोएस्ट ग्रेड पे है जन्नत में। जाहिर है जो आखिर में गया ना वो सबसे निचले दर्जे पे है, ऊपर वाले दर्जों की तो अभी आप छोड़ दें बात। सबसे निचले वाले दर्जे के अंदर जो है, वो ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह, मैं हमेशा के लिए सारे अहले जन्नत की दावत करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। और उसको दावत का इख्तियार दे दिया जाए तो उसके अकेले के इतने खजाने होंगे कि हर दिन वो सारे अहले जन्नत की दावत करता रहे, जियाफत करता रहे, उसके खजाने ही नहीं कभी खत्म होने। अल्लाह अकबर। तो जिससे मांग रहे हैं ना, सोचें वो कितना बड़ा है, और उसके पास कितने खजाने हैं, और उसके पास रहमतों के कितने खजाने हैं। और उससे उसकी रहमत मांगे तो उसकी रहमत आपने मांग ली ना, तो सब कुछ ही मांग लिया। उसकी रहमत होगी तो सब कुछ ही मिल जाएगा। या रहमानु अरहमनी, या रहमानु अरहमनी, या रहमानु या रहीमु अरहमनी। इस तरह से करके मांगेंगे कि ए रहमान इरहमनी, मुझ पे रहम कर दे। ए रहीम इरहमनी, मुझ पे रहम कर दे। तू तो रहमान और रहीम है ना, उसके नामों से वसीला ले, उसके नामों को पुकार के और उनके जरिए उसको पुकारे। फिर वो जिसको चाहे अता कर दे। हर चीज का तो मालिक वो ही है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चाहे आपने दुनिया की चीज मांगनी, चाहे आखिरत की, कोई चीज उसकी मिल्कियत से बाहर थोड़ा ही है। हर चीज उसकी ही तो है। वो जो मर्जी जिसको मर्जी चाहे अता फरमाए। तो जब सजदे में जाएं, इस तरह से दुआएं मांगे, इस तरह से दुआएं मांगे। अब पड़े रहें सजदे के अंदर जितनी देर आपका दिल ना भर जाए, और दुआएं करते जाएं। तो आज की दुआ मैं आपको बता चुकी हूँ।
आपने ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरा, ये दुआ मांग ली। और जो जिक्र है, जिस जिक्र के जरिए आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं, इस जिक्र को करके आप फिर उसके बाद फिर और भी करें अल्लाह ताला की हम्द के, लेकिन ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जरिए दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा आप इसको तो जरूरी करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता। देखिए इसमें सारी अल्लाह ताला की तारीफ है। अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करती हूँ इसलिए कि सारी हम्द तो तेरे लिए है। अल्लाह ताला तू ही इलाह है, तेरे सिवा तो कोई इलाह नहीं। वहदक ला शरीक लक, तेर, तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला है। अलमन्नानु बदीउ समावाति वल अर्द या जुल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। और ये भी अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं, या मन्नान या जुल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। ये भी अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं कि इनसे भी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई इसमें आजम हो। तो आप इसके जरिए भी दुआ कीजिए, और फिर इस उम्मीद के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा, और मेरी बात को वो सुन रहा है, और वो मेरा रब है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उसकी अच्छी इबादत करने की, अच्छी हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और वो अमल हमसे करा ले जिससे वो राज़ी होता हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।